Hello students, I hope you all are fine. So this is your science video of class 3rd and I am your science teacher Anchal Mahajan on the behalf of Paramount Public School. Today I am going to deliver a lecture on topic living and non-living things. This is your very first chapter of the book. Now let us see what are the learning outcomes. Learning outcomes are those things through which in the end of the chapter you will be able to explain these things, like define living and non-living thing. You will be able to define living and non-living things. You will be able to give examples of living and non-living things. You can also give us features of living and non-living things and the difference between living and non-living things. Now the very first thing is, what are living and non-living things? So beta, we are surrounded by so many beautiful things. Our nature has the sun, planets and animals. These are natural things. बेटा जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं we call them natural things. जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं हम उसको natural things बोल रहे हैं. And the things which are made by man, जो humans, जो इंसान खुद बना रहा है उसको हम बोलेंगे man made things. And plants, animals including humans are living things and earth, star, building, cars are non-living things. जो इंसान जो भी चीज़ें बेटा जी रही हैं, जो सांस ले रही हैं उसको हम बोलते हैं living things and जो जी नहीं रही हैं उनको हम बोलते हैं non-living things. Okay, now what is the difference? What are the difference between the living and the non-living things? There are many differences. First one is change in size. As we all know that living things grow with the passage of time. We all know that we grow. Like for example, a newborn baby is small. Over a period, the baby grows and learn. As we all know that बेटा कि जब कोई छोटा सा बेबी होता है तो वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या है वो बड़ा हो जाता है. So it means living things grow. Living things grow with the passage of time. Even the baby also learn to walk, talk and one day baby become big like parents. एक दिन ऐसा आता है जब बेबी अपने पेरेंट्स की तरह बड़ा हो जाता है. As the same thing animals also grow and as we all know that beta plants also grow. Okay, so the second difference is movement. We all know that living things can move their parts of the body. As we all know that we move our part, हम अपने parts, body parts को move कर सकते हैं. We also move from one place to another. हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं. And this type of movement is called locomotion. इस type की movement को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन. ह्यूमंस बेटा अपनी लेग्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी अपनी लेग्स यूज़ करते हैं, फिश अपने फिन्स यूज़ करती हैं और बर्ड्स विंग्स, इनके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं. और हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट क्यों करते हैं? इन द सर्च ऑफ फूड, टू फाइंड शेल्टर एंड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज. Okay, the next one is movement in plants. Plants also show some movement. They do not move from one place to another. बेटा did you see a plant moving from here and there? नहीं, हमने कभी भी प्लांट को इधर उधर चलते नहीं देखा है. लेकिन फिर प्लांट्स मूवमेंट कैसे शो करते हैं? वो सनलाइट की तरफ झुकाव करके अपनी मूवमेंट शो करते हैं. और यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है जिसका नेम है टच मी नॉट. टच मी नॉट बेटा एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर हम टच करेंगे तो वो मुरझा जाएगा हमारे टच करने से. Next point is need to breathe. बेटा living things need to breathe. As we all know that we all are breathing. हमें पता है कि हम सारे सांस ले रहे हैं. Even animals also. Animals भी सांस लेते हैं. हम और animals किससे सांस लेते हैं? With the help of their nose. और इंसेक्ट्स किससे सांस लेते हैं बेटा? कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास होपर्स, उनकी बॉडी में एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? स्प्रिकल्स बोलते हैं. इनके थ्रू वो सांस लेते हैं. इवन फिश यूज देयर गिल्स. फिश किसके थ्रू सांस ले रही है? गिल्स के थ्रू ले रही है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा. प्लांट्स किसके थ्रू बेटा सांस लेते हैं? थ्रू स्ट्रोमेटा. और स्ट्रोमेटा क्या होता है? प्लांट्स की बॉडी पे, ये देखो, ये आपको प्लांट का पत्ता दिख रहा है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटा. वी कॉल देम स्ट्रोमेटा. नेक्स्ट वन इज नीड फॉर फूड एंड वाटर. डिड वी ऑल ईट फूड? हम खाना खाते हैं ना. वी ड्रिंक वाटर. तो इट मीन्स क्या है कि हमें खाना खाना और पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बेटा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? किसकी हेल्प से? प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. ओके. और एनिमल्स अपना खाना किससे लेते हैं बेटा? वो या तो
प्लांट्स को खाएंगे या फिर इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने खाने के तौर पे। लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। डिड यू सी अ चेयर ईटिंग अ फूड? आपने कभी देखा है कि चेयर को खाना खाते हुए? नहीं देखा ना। तो इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज sensing the changes. Sensing the changes means, as we all know that humans and animals have sense organs. हमारे पास sense organs है। अगर हमारे चोट लग जाए या हमें कहीं कुछ भी लग जाए तो हमें we feel pain, हमें दर्द होता है। एंड व्हेन द वेदर चेंज, जब कोल्ड होती है तो बेटा हमें ठंड लगती है और गर्मी लगती है, गर्मियों में ऐसी चीज़ें होती है ना। इट मीन्स कि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। बट प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं है, लेकिन फिर भी वो फील कर सकते हैं। बट दे कैन ऑल्सो फील द चेंजेस अराउंड देम। फिर भी वो फील कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। अगर आप एक चेयर को गिरा दो या पेंसिल आपके हाथ से गिर जाए, क्या उसको चोट लगेगी? नहीं लगेगी। सो इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट feel. And the next one is reproduction. As we all know that बेटा living things produce more of their own kind. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब हमारे जैसे और बेबीज हों, बेटा आपने देखा होगा कैट्स के बेबीज होते हैं, काउस के बेबीज होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? ये बेबीज देते हैं बर्थ टू देयर यंग वंस। बट बर्ड्स, हैंड्स, लिजर्ड, फिश, क्रोकोडाइल ये क्या करते हैं? एग्स देते हैं। एंड देयर बेबीज हैच फ्रॉम द एग्स। इनके बेबी कहाँ से निकलते हैं? एग्स में से निकलते हैं। लास्ट वन इज लाइफ स्पैन। बेटा लाइफ स्पैन, और जो रिप्रोडक्शन की हमने किया था बेटा, तो हमने देखा है प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि बीज से एक नया प्लांट बन जाता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मीनिंग है कि हम लोग कुछ समय के लिए जी रहे हैं, सेवरल ईयर्स के लिए, जितने सालों के लिए हम जीते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। Lifespan. Now there is a difference between living and non-living things, and it is very important. It is very important. Living things grow करते हैं, non-living things नहीं करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, non-living things नहीं जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, पानी चाहिए, और नॉन लिविंग थिंग्स को इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके बेबीज़ होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बेबीज़ नहीं होते हैं। दे डाई, वो मर जाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं। अगर उनमें जीवन ही नहीं है तो वो मरेंगे कैसे, है ना। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स आर द एग्जाम्पल्स। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, पेन, बुक, बिल्डिंग, चेयर। सो दिस इज ऑल योर चैप्टर बेटा, दिस इज योर चैप्टर रीडिंग। आई होप यू ऑल understand this properly. Thank you.